Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Role of the Government in Health. And what we will study in this chapter? About the health, about a case study like healthcare in India, healthcare and equality, what are the possible alternatives for health, and about a case study. In the last chapter, you have read about the state government and its main functionaries, that is the governor, the chief minister and the council of ministers. The state government also have a welfare function to perform. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके स्टेट में जितने भी सिटीजन्स हैं उनको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिले, प्रॉपर एजुकेशन मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, हाउसिंग फैसिलिटीज़ मिले और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, यानी कि उसकी स्टेट में अच्छे रोड हों, ड्रेनेज सिस्टम हो, इलेक्ट्रिसिटी हो. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज हेल्थ. हेल्थ क्या होता है? When we think of a healthy person, the first thing that comes to mind is that of a person who is physically fit and free from illness. अगर हम हेल्थ के बारे में सोचें तो हमारे दिमाग में ऐसा आता है, हेल्थ कौन होता है, हेल्दी पर्सन कौन होता है? जिसको कोई बीमारी ना हो और फिजिकली फिट हो. However, health is not just confined to physical fitness but also means mental well-being. लेकिन health का मतलब सिर्फ physically fit होना ही नहीं है, mentally fit होना भी बहुत ज़रूरी है. A person who is free from any fear or anxiety is seen as a healthy person. जिसको कोई fear ना हो, कोई anxiety ना हो, कोई disease ना हो, mentally fit हो, उसको कहा जाता है healthy person. WHO defines health as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. That is called health. Fine. Now about a case study, healthcare in India. एक अच्छी पॉपुलेशन के लिए, एक अच्छी एसेट बनाने के लिए, ठीक है, लोगों को अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना भी बहुत ज़रूरी है. अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लेबोरेटरीज होनी चाहिए, टेस्ट करने के लिए ब्लड बैंक होने चाहिए. For running these facilities, we need qualified doctors, nurses and professionals who can diagnose and cure illness. Further, even medicines and equipments are needed to cure patient. All these facilities are needed to provide adequate health care. In India, health is a matter of concern. There are strange contrasts so far as medical facilities in India are concerned. These may include, like, first, India has the largest number of medical colleges and produces over 15,000 doctors in a year. It is ironically that most of these doctors settle in urban areas and people of rural areas have to travel long distances to find a doctor. India में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं और बहुत सारे यानी 15,000 अराउंड डॉक्टर हर साल निकलते हैं. लेकिन एक ट्रू क्या है, सच्चाई क्या है कि ये जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वेल क्वालिफाइड, ये सारे अर्बन एरियाज़ में यानी कि बड़े बड़े शहरों में अपना हॉस्पिटल खोल लेते हैं, वहाँ इस्टेब्लिश कर लेते हैं और गांव वाले जो रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं उन्हें अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, उन्हें डॉक्टर को ढूंढने के लिए काफ़ी दूर दूर के शहरों में जाना पड़ता है. In 1950, India has 2,717 hospitals which have grown to 18,218 hospitals now. Still, however, about 5 lakh people die from tuberculosis every year while 2 million cases of malaria are reported. ठीक है, देखो आप 1950 में इंडिया में सिर्फ 2,717 हॉस्पिटल थे, लेकिन अब 18,218 हॉस्पिटल है. उसके बावजूद 5 लाख लोग जो हैं हर साल ट्यूबरक्लोसिस से या अलग किसी बीमारी से मारे जाते हैं. थर्ड, people from abroad come to get medical treatment as we have some of the best hospitals in the world. India is still not able to provide clean water to all and disease like diarrhea, gastroenteritis etc. are still dominant. हालांकि हमारे इंडिया में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं, तो अब्रॉड से भी लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि इंडिया में हम अभी तक क्लीन वाटर तक हर जगह प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं और गंदे पानी से बहुत सारी बीमारियां जो हैं लोगों को हो जाती हैं.
India has a large number of doctors and health centers. Some of our hospitals have facilities that are among the best in the world. Many people visit India as a medical tourist to get treatment. India is also a leading producer of medicines. इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद a large number of people die here from preventable causes. Often people cannot get timely medical help as they have to travel long distances to reach a health center. इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद, इतनी तरक्की करने के बाद भी अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया में मारे जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छे हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है. एंड मैनी कैन नॉट बियर द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. द स्टेप्स टेकन टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज आर नॉट इनफ. मैनी इंडियंस स्टिल डू नॉट गेट क्लीन वाटर टू ड्रिंक एंड इनफ फूड टू ईट. सो देयर इज स्टिल अ लॉट दैट द गवर्नमेंट कैन डू इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बची हुई हैं जिसमें गवर्नमेंट को पब्लिक की हेल्थ की वेलफेयर के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज delivery of health care services. The state government is responsible for planning, carrying out and monitoring schemes to improve public health. It receives financial and technical help from the central government. Usually, local self-government bodies and NGOs are actively involved in efforts to improve public health. तो public health की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की. ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट को फंड कहाँ से मिलता है? वो मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से. उसके अलावा लोकल सेल्फ बॉडीज़ और एनजीओ जो हैं वो लगातार एफर्ट करते रहते हैं ताकि लोगों की वेलफेयर के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए वो काफ़ी स्टेप्स उठा सके. नाउ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज. These are called public health services. All these services work together to provide treatment for all kinds of illness from common ailment to specialized treatment. ठीक है, जो सरकार ने जगह जगह पर हॉस्पिटल्स खोले हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स खोले हैं लोगों की वेलफेयर के लिए, उन्हें पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कहा जाता है. इसमें छोटी से बीमारी से लेकर, छोटी चोट से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज किया जाता है. Our public health care public envisages a three-tier structure comprising the primary, secondary and tertiary healthcare facilities to bring these services within the reach of the people. प्राइमरी टायर कौन सा है? प्राइमरी टायर हैज़ 3 टाइप ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, नेमली अ सब सेंटर, अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. द हेल्थ सेंटर्स इन द विलेजेस आर हैंडल्ड बाय ट्रेन नर्सेज एंड विलेज हेल्थ वर्कर. ठीक है, ये क्या है? प्राइमरी टायर. सबसे लोकल, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, जैसे कि छोटे छोटे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन खोल दिए जाते हैं, या सब सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसमें नर्सेज होती हैं, ठीक है, जो सारा गांव वालों की हेल्थ का ध्यान रखती है. उसके अलावा विलेज हेल्थ वर्कर भी होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट टायर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जहां पर हॉस्पिटल्स होते हैं. दैट इज़ द सेकंड टायर फॉर द रूरल हेल्थ केयर एंड एज द प्राइमरी tier for the urban population. They supervise the rural areas with this facility. उसके बाद tertiary healthcare that provided by the healthcare institution in urban areas which are well equipped and sophisticated diagnostic and investigative facilities. जिसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें हर तरीके की बीमारी का इलाज किया जाता है. सारी मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न मशीन्स जो हैं वहाँ पर अवेलेबल होती हैं. नेक्स्ट इज प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. दिस इज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो गवर्नमेंट रन करती है. प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के अलावा ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल, क्लिनिक जो है वो ओपन किए जाते हैं, जो डॉक्टर अपना खुद क्लिनिक ओपन कर लेते हैं. ठीक है, दे आर ऑल्सो मैनी प्राइवेट रन हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स. द प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर गुड, बट ये क्या होती हैं? महंगी होती हैं और मोस्टली सिटीज़ में पाई जाती हैं. In urban areas, many specialized nursing homes offer laboratories for special facilities like X-ray, etc. In addition, a large number of medicinal shops are available. In rural areas, private doctors operate as registered medical practitioners. Unlike public health services,
are expensive and people have to pay a hefty amount for treatment, test and medicines. जैसे पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी जो होती हैं वो कम बजट के लोगों के लिए होती हैं, फ्री होती हैं, ठीक है, लेकिन प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी अच्छी तो होती हैं, मॉडर्न टेक्निक भी होती है, मेडिसिनल शॉप भी होती हैं, हर तरीके के एक्सरे किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं. नाउ हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी. इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या सबको एक जैसी हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल है? नो. इन इंडिया प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर इंक्रीजिंग, पुट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैव डेट्रोएटेड. इंडिया में डे बाय डे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं, ठीक है, और जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं वो काफ़ी पॉपुलर होती जा रही हैं. इन मोस्ट ऑफ द अर्बन एरियाज प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर रन फॉर अ प्रॉफिट वाइल मेडिसिन आर एक्सपेंसिव. ज़्यादातर जो शहरों में बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल खोले गए हैं वो प्रॉफिट के लिए ही खोले जाते हैं, जहाँ पर दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, एक दिन का बेड का जो एक्सपेंस है वो भी काफ़ी महंगा होता है. बहुत सारे लोग जो हैं ऐसा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते. हाउएवर प्राइवेट services even misuse their services by recommending unnecessary medicines, injections or saline bottles when mild medicine can be very sufficient. प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या करते हैं, जब छोटी सी दवाई से काम चल सकता है उस केस में वो लोगों को काफ़ी महंगी दवाइयाँ, इंजेक्शन जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं. इन इंडिया हार्डली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड द एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट ड्यू टू पॉवर्टी एंड हार्डशिप. एट टाइम्स पीपल हैव टू बोरो मनी और sell their possession to pay for the expenses. और जब उनके पास कोई रास्ता नहीं होता प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के अलावा तो उन्हें अपनी चीज़ों को बेचना पड़ता है या पैसे जो हैं वो उधार लेने पड़ते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता. इससे अच्छा क्या करना चाहिए कि हर एक जगह पर क्लीन वाटर होना चाहिए, सफाई का ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर हाउसिंग होनी चाहिए ताकि लोग कम बीमार पड़े. समटाइम्स शॉर्टेज ऑफ मनी ऑल्सो प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट. Health of women and health of tribals are the two major areas neglected in India. इंडिया में दो ये मेजर एरियाज हैं जहाँ पर ध्यान हेल्थ को ध्यान में नहीं रखा जाता. एक वीमेन के हेल्थ को इग्नोर किया जाता है, सेकंड हेल्थ ऑफ ट्राइबल्स. नेक्स्ट इज व्हाट आर द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स फॉर हेल्थ. क्या किया जा सकता है हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकें. India has a large number of doctors and health centers. Some of our hospitals have facilities that are among the best in the world. Many people visit India as a medical tourist to get treatment. India is also a leading producer of medicines. In spite of all, a large number of people die from preventable cause. Often people cannot get timely medicinal help. ठीक है, उन्हें काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करना पड़ता है. तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सब लोगों को एडुकेट हेल्थ फैसिलिटी दी जाए, बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाएं और लोगों की सोशल कंडीशन का भी ध्यान रखा जाए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन द पब्लिक हेल्थ केयर. ओवर हेयर वी कैन गिव 2 examples to improve health care. Now in between we will read about a case study, that is the Kerala experience. The early accessibility and coverage of medical care in the state facilities have played a dominant role in shaping the health status of the people in Kerala. In 1996, the Kerala government made a drastic change. It decided to allot 40% of the development budget to local communities. This enabled the villagers to plan for water, food, women's development and education. Specific problems of the villages were taken up. Through the 5 years of the campaign, PHCs were improved in hundreds of localities. Physicians and community activists worked together. One of the most important areas of improvement was the Tolak Hospital, where block panchayats put in equipment and local committees provided volunteer labor. However, some problems remain like shortage of medicine, staff responsibility and bed adequacy which need to be addressed. केरला में local communities को कुछ बजट एलोकेट कर दिया था अपनी local facilities को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, और काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव भी हुई हैं. जैसे कि तोलक हॉस्पिटल ओपन किया गया, ठीक है, जहाँ पर ब्लॉक पंचायत ने प्रॉपर इक्विपमेंट रखे, ठीक है,
लोकल कमेटी प्रोवाइडेड वॉलंटियर लेबर प्रोवाइड की। उसके अलावा लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी पेंडिंग हैं, जैसे कि बेड प्रॉपर नहीं है, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन हैं, स्टाफ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कम स्टाफ है, तो इन चीज़ों की तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। सेकेंड, यहाँ बताया गया है कोस्टा रिका के बारे में, इज वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका। सेवरल ईयर्स एगो कोस्टा रिका डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी सो दैट इट कुड स्पेंड मनी ऑन हेल्थ ऑफ पीपल। बहुत सालों पहले कोस्टा रिका की गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया था कि आर्मी पर एक्सपेंस करने की बजाय, कि हमें आर्मी नहीं चाहिए, आर्मी पर एक्सपेंस करने की बजाय लोगों की हेल्थ पर पैसा खर्च किया जाए। The Costa Rican government provides basic health services and amenities to provide safe drinking water, sanitation, nutrition and housing are a part of this program. Health education is considered vital at all levels of development. Now, let us recall the chapter. It is necessary to provide health services to every citizen. Public health services include the whole chain of health clinics. Private health services are available at high cost, and it is the responsibility to provide health services to every person at a very reasonable cost. And this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. एक बार chapter को आप फिर से read करेंगे और exercise की practice खुद करेंगे.